Okay, let's start with the solved examples of inverse trigonometric functions. Okay, the first question is, let me, okay, great. The first question is, if sine inverse of 1 by 3 plus cos inverse of x is equal to pi by 2, then find the value of x. Now, if you remember the trigonometric properties of inverse trigonometric functions, then you can easily answer this question. The property which we are going to use over here is this one. Sine inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. That means sine inverse of a number plus cos inverse of the same number will always give you pi by 2, right? So let's use that property using sine inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. We get x is equal to 1 by 3, right? So x, the value of x is 1 by 3 over here. The same formula, the same type of formula will be used for the second one, that is sec inverse of minus 2, sorry, sec inverse of 2 plus cosec inverse of 2 will be pi by 2. So y will be 2 in the second question, right? So that was the first question. Let's go to the second thing. Prove the following. Okay, so what they are asking us to prove, they are asking us to prove cos of, okay, it's already written, I'm not going to write again. Cos of sine inverse of 3 by 5 plus cot inverse of 3 by 2 is equal to 6 upon 5 root 13. Now you cannot solve this unless and until both these terms are in the form of cos, right? Because you know the formula for cos x plus cos y, so you can solve that further. But both these underlying terms should be in the terms of cos, right? So if you see the formula again, I'm just going to show you over here. Do we have any formula for cos inverse of x plus cos inverse of y? Yes, we have a formula right over here. This is the formula for cos inverse of x plus cos inverse of y, the last formula which we derived, right? So what we are going to do is, we are going to first convert sine inverse of 3 by 5 in terms of cos. Let's see how to do this. So sine inverse, let me write it over here, just a moment. Great. Okay, so we have to convert sine inverse of 3 by 5 in terms of cos inverse. Okay, so that is the criteria. Now how to do that? Now let sine inverse of 3 by 5 is equal to x. Therefore we can say that sine x is equal to 3 by 5, right? Now you know that sine square theta plus cos square theta is equal to 1. So what will be cos square theta? 1 minus sine square theta. So what will be cos theta? Cos theta will be under root of 1 minus sine square theta. So we are going to use the same idea over here and find cos x. Therefore, cos x is equal to under root of 1 minus sine square x, right? And therefore cos x is equal to under root of 1 minus, what is sine x? 3 by 5. So sine square x will be 3 by 5 the whole square. Therefore cos x will be under root of 1 minus 9 by 25. That is under root of 25 minus 9 by 25. So cos x
will be under root of 16 by 25, which is 4 by 5. So we got the value of cos x. So cos inverse of 4 by 5 is equal to x. Cos inverse of 4 by 5 is equal to x. Okay, so now we have converted sine inverse of 3 by 5 into cos inverse of 4 by 5 because they both are equal to x. So we can say that sine inverse of 3 by 5 is equal to cos inverse of 4 by 5. So one thing is done, half the job is done, but still we have to convert cot inverse of 3 by 2. Let's do that as well, right? Let's make some space. So we have cot inverse of 3 by 2. So first we will write let cot inverse of 3 by 2 is equal to x. Therefore cot x is equal to 3 by 2. Cot x is equal to 3 by 2. Now how to convert cot in terms of cos, right? So what is cot theta? Cot theta is cos theta upon sin theta. So can I write it as cos theta upon under root of 1 minus sin 1 minus cos square theta, I'm sorry, 1 minus cos square theta. Okay, cos theta. I already know the value of cos theta. Cos theta, I'm going to write it. So let's skip this for a while. I know what is cot theta now in terms of cos theta, right? So in place of cot x, I'm just going to write cos x upon under root of 1 minus cos square x is equal to 3 by 2. Okay, let me square both the sides. So I will get cos square x upon 1 minus cos square x is equal to 9 by 4, right? So I did square both the sides. I'm just trying to find the value of cos x over here. Why? Because I'm trying to convert cot inverse of 3 by 2 into cos inverse. That is the idea. Now I'll take reciprocal. 1 minus cos square x upon, sorry, 1 minus cos inverse of x upon, sorry, cos square it is. Why I'm writing inverse? 1 minus cos square x upon cos square x is equal to 4 by 9. And then how can I simplify this further? So I can write it as 1 upon cos square x minus cos square x upon cos square x, right? And that is equal to 4 by 9. And just remove this for a moment. That is equal to 4 by 9. So 1 upon cos square x is equal to, sorry, is equal to, this will get cut and minus will go that side. So 4 by 9 plus 1 minus 1 will go that side and become plus 1. So 1 upon cos square x is equal to 4 plus 9 by 9. So cos square x is equal to 13 by 9 and cos x is equal to under root of 13 by under root of 9 is 3. Under root of 13 by 3. We could have very well taken y over here. Okay, so this might be confusing because of this x. So wherever there is x, I could have written y. Let me just do that quickly. So wherever there was, let cot inverse of 3 by 2 is equal to y. So cot y is 3 by 2.
So cos y upon 1 minus cos square y is 3 by 2. So cos square y upon 1 minus cos square y is 9 by 4. So 1 minus cos square y upon cos square y is equal to 4 by 9. So I simplified here 1 upon cos square y upon cos square y upon cos square y, right? And then it will be 1 upon cos square y, cos square y. Okay, so cos y is equal to root 13 by 3. Cool. Cos y, the value of cot in terms of, okay, so let's simplify this. Therefore, cos inverse of root 13 by 3 is equal to y. So we can say that cot inverse of root 3 by 2, this value, is equal to cos inverse of root 13 by 3, this value. So we have converted both cot and sine in terms of cos, right? So in place of sine inverse of 3 by 5, what we are going to write? We are going to write cos inverse of 4 by 5, right? That is the value we got, cos inverse of 4 by 5. And cot inverse of 3 by 2, in place of cot inverse of 3 by 2, I'll write cos inverse of root 13 by 3, right? Root 13 by 3, that's what we had got. Okay, so now I'm going to use the formula of cos inverse of x plus cos inverse of y. The formula is over here. Cos inverse of x y minus, let me write it, cos inverse of xy minus under root of 1 minus x square into 1 minus y square. xy, so x is 4 by 5, y is root 13 by 3 minus, okay, x again is 4 by 5 the whole square into 1 minus y is root 13 by 3 the whole square. So when I'll simplify this, I'll get cos of cos inverse of uh, 6 upon 5 root 13, which will become 6 upon 5 root 13. So this is your final answer, right? So the method I explained you in detail. Let's look at the next question. If tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to pi by 4 and xy is smaller than 1, then write the value of x plus y plus xy. Okay. Okay, so they have given the value of tan inverse of x plus tan inverse of y. So tan inverse of x plus tan inverse of y. Let's see if we have some formulae. What's this? Yes. Tan inverse of x plus tan inverse of y. Yes. I see a formula over here, this one, right? Tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y the whole upon 1 minus xy.
So leave, okay, yeah. So tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Let me write it. Tan inverse of x plus y upon 1 minus xy is equal to pi by 4. Or tan of pi by 4 is equal to x plus y upon 1 minus xy, right? So what is tan pi by 4? Tan pi by 4 is 1. So x plus y upon 1 minus xy is equal to 1. So x plus y is equal to 1 minus xy, or x plus y plus xy is equal to 1. So that's the final answer. Right? Very easy question. Prove that 3 sine inverse of x is equal to sine inverse of 3x minus 4x cube. This is a very similar identity. Okay, let's see how to solve this. Now we have got LHS as 3 sine inverse of x. Okay, so let us take 3 sine inverse of x is equal to theta, right? So can we simplify this? Okay, I think we can do it simple. We can take sine inverse of x as theta. Therefore, sine theta is equal to x. X is equal to sine theta. So if we put the value of x in RHS, we can simplify this. Sine inverse, because LHS cannot be further simplified. Sine inverse of 3 bracket sine theta minus 4 sine cube theta. So sine inverse of 3 sine theta minus 4 sine cube theta, right? This is what we have got. 3 sine theta minus 4 sine cube theta. Okay, can you remember an identity which resembles to this identity? What is 3 sine x minus 4 sine cube x? This is the formula for sine 3x. This is from trigonometry, sine 3x, right? So sine inverse of sine 3 theta. So the answer will be 3 theta. And what is theta? Theta is sine inverse of x. So 3 into sine inverse of x. Now what is 3 into sine inverse of x? It is your LHS. So you have proved it. Alright, so it was very interesting question. Let's move to the next question. Okay. If sine inverse of x is equal to tan inverse of y, then show that 1 upon x square minus 1 upon y square is equal to 1. This is easy. Okay, let sine inverse of x is equal to, let me just
tan inverse of x is equal to theta. Therefore, sine theta is equal to tan theta. Oh, sorry. There is some issue. There is some mistake. Let me do it separately. Sine inverse of x is equal to tan inverse of y, they say. Right? So we can write sine inverse of x as theta, and therefore sine theta is equal to x, and tan inverse of y is equal to theta, right? So tan theta is equal to y. So sine theta is x, tan theta is y, right? Let's put the value in LHS. LHS is equal to 1 upon x square, that is sine square theta, minus 1 upon y square, which is tan square theta. Let me simplify this. So 1 upon sine square theta minus 1 upon sine square theta upon cos square theta. That is what tan square theta is, right? So this will become 1 minus cos square theta upon sine square theta. That is sine square theta upon sine square theta, which is 1. Very easy. Okay, let's go to the next question. Okay, we have to prove that cos inverse of x plus cos inverse of x by 2 plus under root of 3 minus 3x square the whole upon 2 is equal to pi by 3, and x is between half and 1. X is between half and 1. Okay, if the x is between half and 1 and this question has only cos, that means the value of theta should be between pi by 6 and 0. 0 and pi by 6, that is 0 and 0 and uh, half, right? So not pi by 6, pi by 3, 0 and 60 degree. Okay, but that doesn't matter right now. Can we simplify this? Yeah, we can do that. We can take cos inverse of x is equal to theta. Therefore, cos theta is equal to x. Cos theta is equal to x. Okay, so if we put the value of cos theta in the bracket and then try to simplify, I think that will work. Okay, so our LHS, let's write everything all over again. Cos inverse of x plus cos inverse of x by 2 plus under root of 3 minus 3x square the whole upon 2. Okay, cos inverse of x is theta. So theta plus cos inverse of. Now here comes the game. Okay, this I can write as x into 1 by 2. What is x? Cos theta. What is 1 by 2? 1 by 2 is cos pi by 3. Cos pi by 3. Right? Cos theta into cos pi by 3 plus. Let us simplify this. Okay, I will simplify it over here. Can I write root of 3 minus 3x square the whole upon 2 as root 3 by 2 minus root 3x square by 2, right? And then can I write it as root 3 by 2 minus root 3 by 2
into x, right? Root 3 by 2 into root 3 by 2 into x. And then can I further simplify it as, if root 3 comes out of the bracket, 1 minus x. But what is the use? Let's see. If I write okay, looks like I made some serious mistake over here. This cannot be like this. That's why we are getting 1 minus x. एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक आइडेंटिटी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाली, लेकिन वो ऐसे नहीं होगी। तो कैसे होगी? तो हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट में 3 को कॉमन रख के 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखेंगे अंदर, एंड द होल अपॉन 2, और फिर इसको अलग करेंगे रूट 3 बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? नाउ अभी तुम्हें पता है कि कॉस थीटा एक्स है, तो मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? साइन थीटा होगा, राइट? तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे जो रूट ऑफ 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 था, वो तो बन गया रूट 3 बाई 2 इंटू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो साइन थीटा है। तो रूट 3 बाई 2 क्या है? वो है साइन पाई बाई 3। सो root 3 by 2 can be written as sin pi by 3 multiplied by under root of 1 minus x square. See, this is root 3 by 2, which I replaced with sin pi by 3, and under root of 1 minus x square can be replaced with sin theta, right? Sin theta. Okay, so this is theta plus cos inverse of cos a cos b plus sin a sin b. What is cos a cos b plus sin a sin b? Cos of a minus b, right? So what is a, what is b over here? Is a theta and b pi by 3, or b theta and a pi by 3? See, you can take anything. You can take a as pi by 3. Just a moment, I again made a mistake. So cos of pi by 3 minus theta, right? So theta plus cos inverse of cos of pi by 3 minus theta. What will this be? This will be simply pi by 3 minus theta, and theta plus minus will get cancelled and you'll get pi by 3. है, और मेरे को काफ़ी टाइम लग गया ये क्वेश्चन में, ये पता लगाने में कि ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन में गलती क्या है पता है? ये वाली गलती है, साइन इनवर्स होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे साइन होना चाहिए। तो एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है मैं यहाँ लिखता हूँ, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2√2। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्योंकि साइन इनवर्स दिया था तो मैं सॉल्व करते गया मेरे मेथड से, उनकी मेथड से मैंने देखा तो आंसर उनका आ रहा था, मेरी मेथड से मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि tan इनवर्स को मैं कन्वर्ट कर रहा था तो वो साइन इनवर्स अंदर बन रहा था। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, साइन ऑफ साइन इनवर्स सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना है, क्या इसमें हमें ये दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। तो पहले फर्स्ट वाली टर्म लेते हैं, तो 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ 1/4, राइट? पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या यूज करेंगे पता है? यूजिंग एक आइडेंटिटी है, मैं तुम्हें बताता हूँ।
आइडेंटिटी तुम्हें अगर दिख रही है, ये वाली आइडेंटिटी है, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan inverse of x is equal to sin inverse of x upon 1 plus x square, 2x upon 1 plus x square, I'm sorry। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं 2 tan इनवर्स ऑफ x को लिख सकता हूँ sin इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/4 द होल अपॉन 1 प्लस 1/4 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/4 हो जाएगा 1/2 द होल अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 द होल अपॉन 17/16 which is sin inverse of 16 अपॉन 2 इंटू 17। तो ये कट जाएगा, ये हमें मिलेगा 8/17, डायरेक्ट मिल गया ये। ठीक है, सो 2 tan इनवर्स ऑफ 1/4 की वैल्यू क्या आई? 2 tan इनवर्स ऑफ 1/4 है, सॉरी यहाँ पे मुझे अच्छे से लिखना चाहिए था, साइन इनवर्स ऑफ 8/17। तो मैंने tan इनवर्स को सीधा साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, 2 tan इनवर्स ऑफ x को साइन इनवर्स ऑफ x में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला है मेरे पास, राइट। अब बचा tan इनवर्स ऑफ 2√2, क्या मैं इसको cos के टर्म्स में ला सकता हूँ? तो फॉर्मूला है अपने पास डायरेक्टली, क्या फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स ऑफ x, क्या फॉर्मूला में हमारे पास 2 नहीं है, 2 नहीं है तो ये हम लोग सॉल्व नहीं करते। तो हम लोग को ये सॉल्व करने के लिए ना, लेट tan इनवर्स ऑफ 2√2 इज इक्वल टू थीटा लेना पड़ेगा। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2√2, राइट। अब tan थीटा को मुझे कन्वर्ट करना है cos में, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब साइन थीटा को भी cos थीटा में कर सकते हैं हम लोग, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसका ये मतलब है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2√2। अब अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इतना एलैबोरेट करके कोई भी क्वेश्चन में वो लोग नहीं दिखाएंगे। सो बेटर है कि तुम ये एलैबोरेट करना सीख जाओ अच्छे से, और फिर तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये सब में इतने मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, सो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर 8। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 इज इक्वल टू 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/9, एंड देयरफॉर कॉस थीटा हो जाएगा 1/3। कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, और इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा की पहली वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स ऑफ 2√2, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ 2√2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3।
tan इनवर्स ऑफ 2√2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। अब ये tan तो कॉस में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स 2√2 कॉस इनवर्स 1/3 में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन में सारी वैल्यू डालेंगे। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था अपना, मैं थोड़ा इसको और ये साइड ले लेता हूँ। अब ओरिजिनल क्वेश्चन जो था हमारा वो था साइन इनवर्स ऑफ, ओके, ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स नहीं था, आई एम सॉरी, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स था, सॉरी 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 सॉरी, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/4, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2, राइट, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, यस रिकॉर्डिंग चल रही है। चल, तो मुझे क्या मिला, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/4 की क्या वैल्यू मिली मुझे, एक मिनट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/4 की वैल्यू मिली मुझे साइन इनवर्स ऑफ 8/17, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2√2 की वैल्यू क्या मिली, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। सो साइन इनवर्स ऑफ 8/17, देखो हमने पहले देखा था, यहाँ पे लिखता हूं मैं, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन और एक बात समझो कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये भी एक्स होता है, ठीक है, ये बहुत ध्यान में रखना है इस चीज को। उप्स, क्या हो गया, रुक जाएगा, ठीक है, सो ये चीज को आपको काफी ध्यान में रखना है। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 8/17 हो जाएगा 8/17 प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 हो जाएगा 1/3। अगर इसको सॉल्व करोगे, तुम सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यूज डालोगे, तो तुम्हें मिलेगा 41/51, सिंप्लीफाई एलसीएम लेके। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे जो मिस्टेक थी वो मैंने तुम्हें बताई क्या थी और कैसे सॉल्व करना है, इसको मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है, प्लीज़ याद रखना इसको, मैंने काफ़ी टाइम दिया है इसके पीछे। मैं 5 बजे मैंने शुरू किया था इसको सॉल्व करना, और अब बज रहे हैं 9:30। हाँ, बीच में मैंने काफ़ी ब्रेक ले लिया क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, बट फिर मैंने जब साइन डाल के सॉल्व किया तो मैंने आंसर आ रहा था, दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि क्वेश्चन में गलती है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Prove that tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/5 plus tan inverse of 1/8 is equal to pi/4। ये इजी है, ये कैसे इजी है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम पहले tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5, ठीक है, इन दोनों को तुम अलग से ब्रैकेट में रखोगे, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 को छोड़ दो, बाहर रखो, ठीक है, LHS इसको बना दो और ये दोनों को ब्रैकेट में रख दो, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5, ठीक है, और फिर देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये रहा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला, ठीक है, तुम्हें आंसर भी tan इनवर्स के टर्म्स में ही मिलेगा, जो भी मिलेगा। ये फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करो, डी का फोर्थ वाला, तो तुम्हें, आई एम सॉरी अबाउट दिस, अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तुम, तो तुम्हें इसका आंसर मिलेगा tan इनवर्स के टर्म्स में, मतलब इसका आंसर कुछ आएगा tan इनवर्स ऑफ समथिंग, प्लस तुम्हारे पास ऑलरेडी tan इनवर्स ऑफ 1/8 तो है ही, फिर से वही फॉर्मूला यूज करो, फिर से वही फॉर्मूला यूज करो, तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो जो भी होगा आंसर, उसको सॉल्व करके तुम्हें pi/4 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हें पॉज करके लिख लो और तुम्हें खुद सॉल्व करना है, 8th वाला।
नाइन्थ वाले पे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17, इसको तुम्हें प्रूव करना है कॉस इनवर्स ऑफ 84/85। अभी तुम्हारा फॉर्मूला देखो, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, ऐसा कोई फॉर्मूला है? हाँ है। कौन सा? e का फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। लेकिन साइन इनवर्स ऑफ x और साइन इनवर्स ऑफ y से साइन इनवर्स के टर्म्स में ही तुम्हें आंसर मिलता है, फिर वो साइन इनवर्स को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस इनवर्स के टर्म्स में। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो ये वाला पहले एक बार फॉर्मूला देख ले, मेरे को तो याद नहीं है फॉर्मूला क्या है। साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स है ना, हाँ, माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। आई होप याद रहे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यूजिंग साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर था ना, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर और फिर माइनस की साइन थी, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। राइट, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी x क्या है? x है 3/5। y क्या है? y है 8/17। लेट अस यूज द फॉर्मूला। थोड़ा अलग तरीके से, अपने तरीके से करेंगे। फॉर्मूले याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुरंत पैटर्न समझ में आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, therefore साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x क्या है? 3/5 माइनस सॉरी इनटू है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, multiplied by under root of 1 minus y square, so 1 minus 8/17 का स्क्वायर। 8/17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का 64, 64 अपॉन 289, राइट, माइनस y that is 8/17 into under root of 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? 9/25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 289 माइनस 64 कितना होता है? 289 माइनस 64 होता है 5, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, 225 जिसका रूट है 15, सो 225 अपॉन 289 अंडर रूट, और रूट से बाहर निकालोगे तो 15 अपॉन 17 माइनस 8/17 इंटू 25 माइनस 9 16 अपॉन 25, रूट से बाहर निकालोगे तो 4/5। राइट, कुछ कट हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे हो रहा है। राइट, तो कैसे हो जाएगा ये? साइन इनवर्स ऑफ 9/17 माइनस, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है नहीं, 32/17 5 85, एलसीएम ले लेंगे। साइन इनवर्स ऑफ 45 माइनस 32 अपॉन 85, राइट, साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? 45 माइनस 32, 5 माइनस 2 3 एंड 4 माइनस 3 1, 13/85, राइट, साइन इनवर्स ऑफ 13/85। अब इसको मैं कॉस इनवर्स बनाऊंगा, देखो कैसे। थोड़ा नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाओ, यहाँ राइट में जाते हैं। देखो, लेट
साइन इनवर्स ऑफ 13/85 is equal to theta. Therefore, sin theta is equal to 13/85. राइट, sin theta हो जाएगा 13/85. अब cos theta कितना हो जाएगा? Therefore, sin theta is equal to under root of 1 minus cos square theta. तो under root of 1 minus cos square theta कितना हो जाएगा? 13/85. सो 1 माइनस cos square की थीटा कितना हो जाएगा? 13/85 the whole square, right? So 1 minus 13/85 the whole square is equal to cos square theta. हो जाएगा, राइट? cos square theta ये साइड आ गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर ही रखता हूँ अभी. यहाँ पे आ जाएगा 85 स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करें? अब 85 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर अपॉन 85 स्क्वायर लिख देते हैं इसको, और ये क्या है? cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, 85 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, दैट इज 85 प्लस 13 इंटू 85 माइनस 13. वैसे ही कुछ भी करो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, 85 स्क्वायर, 85 स्क्वायर को कुछ मत करना, लेकिन वो जो न्यूमरेटर है उसको तो कुछ ना कुछ तुम्हें सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा. ठीक है, चलो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लगाते हैं इसको. 5 माइनस, सो 85 प्लस 13, 85 माइनस 13. 85 प्लस 13 कितना होता है? 85 प्लस 10 95, 95 प्लस 3 98. सो 98 स्क्वायर इंटू 85 प्लस 13 कितना होगा? सॉरी, 85 माइनस 13 कितना होगा? 5 माइनस 3 2, और 8 माइनस 1 7, राइट? 85 माइनस 10 75 माइनस, करेक्ट है, 72 स्क्वायर अपॉन 85 स्क्वायर. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए स्क्वायर नहीं आएगा, आई एम सॉरी 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 सॉरी, स्क्वायर कहाँ से आएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा बस. इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. अब सिर्फ मुझे कॉस थीटा ढूंढना है ताकि मुझे कॉस इनवर्स मिल जाएगा. ठीक है, तो 98 और 72 को सिंप्लीफाई कर दो ना. 98 क्या होता है? अ, अ, 98 किसके टेबल में? 14 6 96. ओह यार, 98, 14 7 98 होता है. 12 72 को क्या करेंगे? 36 2 72 होता है. मेरे को ना बहुत कंटाला आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का, बिना मल्टीप्लिकेशन इसको निकाल देंगे. सो 14 क्या होता है? 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 36 क्या होता है? 6 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 85 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अभी 2 का भी स्क्वायर है, 7 का भी स्क्वायर है, 6 का भी स्क्वायर है, 85. तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? एक बार 2 आएगा, एक बार 7 आएगा, और एक बार 6 आएगा अपॉन 85, राइट? तो 7 6 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84 अपॉन 85. सो थोड़ा सा राइट में, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 84 अपॉन 85 ये मिल रहा है मुझे. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 84 अपॉन 85. ये मुझे आंसर मिला, और मुझे चाहिए था थीटा. क्यों मुझे चाहिए था थीटा? क्योंकि
साइन इनवर्स ऑफ 13/85 थीटा है ये वाला। तो मुझे कॉस मुझे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना था। तो कॉस इनवर्स 80 थीटा हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 84/85। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ये जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें मैं वैल्यू डालूंगा। ठीक है, मैंने आई एम सॉरी मैंने पहले ही इसको आइडेंटिटी लगा दी थी और मुझे आंसर मिल गया था साइन इनवर्स ऑफ 13/85। ठीक है, तो ये आ गया ना आंसर यार। क्या कर रहा हूँ मैं? अभी आ गया ना आंसर, हो गया। यही तो आया मुझे। ये जो मैंने आइडेंटिटी लगाई साइन एक्स माइनस साइन वाई की, उससे सीधा जो मुझे साइन के टर्म्स में आंसर मिला उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉस में, और मेरा फाइनल आंसर रेडी हो गया यहाँ। राइट, कॉस इनवर्स ऑफ 84/85, मतलब इसके बाजू में ही मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 84/85। राइट, नो फैंसी मेथड्स रिक्वायर्ड। हमारी प्रॉपर्टीज इनफ है ये प्रूव करने के लिए। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन इनवर्स दिया है और प्लस कॉस इनवर्स, और तुम्हें प्रूव करना है इसको कि दिस इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स ऑफ समथिंग बिग नंबर 3696/4225। तो ऐसे साइन इनवर्स और प्लस कॉस इनवर्स की कोई आइडेंटिटी है क्या? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, लेट्स चेक। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स तो दिख गई मुझे, ये वाली आइडेंटिटी है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 है ना, इसको मुझे साइन इनवर्स के टर्म्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, साइन इनवर्स के टर्म्स में लाके फिर मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई की। अब ये आइडेंटिटी देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, ये यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी फिर से जो पहले वाले क्वेश्चन में की थी साइन इनवर्स के टर्म्स में ही आएगी वो आइडेंटिटी। फिर उसको सिंप्लीफाई करके मुझे ये वाला आंसर लाना है कैसे भी करके। तो ये 10th वाला तुम ट्राई करो, सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन नाउ। ये आगे हाफ कैसे आएगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, आई थिंक आना चाहिए, बट लेट्स सी, तुम लोग सॉल्व करके ट्राई करो। ये एक तरीका जो मैंने बताया कि कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 को साइन इनवर्स के टर्म्स में लेके आओ, और उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई की आइडेंटिटी लगाओ LHS में, सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसको साइन इनवर्स के टर्म्स में लाओ, और फिर चेक करो इसके साथ जो तुम्हारा RHS है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 10th वाला। 11th, show that 2 sin inverse of 3/5 minus tan inverse of 17/31 is equal to pi/4। हो सकता है क्या ये? हो सकता है अगर मैं कैसे भी करके tan इनवर्स, एक मिनट, tan tan इनवर्स 2 sin थीटा का कोई आइडेंटिटी है क्या? 2 sin थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा, इसका कोई आइडेंटिटी है क्या? ओके, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है देखो, ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 sin इनवर्स ऑफ 3/5 दी। राइट, मैं अगर सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 दिया है और tan इनवर्स ऑफ 17/31 दिया है, तो tan को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई वाली आइडेंटिटी फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करके मैं आंसर ले आता। लेकिन 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को कैसे सिंप्लीफाई करें? ठीक है, सो देखो कैसे लिखना है इसको। लेट 2 साइन इनवर्स of 3/5 is equal to थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 is equal to थीटा/2।
राइट। अब मुझे चाहिए साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, मतलब मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके, राइट। मेरे पास 2 साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है, मुझे उससे साइन इनवर्स ऑफ समथिंग चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ थीटा बाई 2 की वैल्यू आई, अब मैं आगे इसको कैसे करूँगा? सो बेसिकली मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तुम्हें पता होगा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने पहले भी अभी ये फॉर्मूला यूज़ किया था। सो अगर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अब देखो, थीटा बाई 2 की वैल्यू है हमारे पास, थीटा बाई 2 क्या होगा? इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू थीटा बाई 2 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ थी सॉरी दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 3/5, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं क्या इससे कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। सो साइन थीटा बाई 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 3/5। अब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा बोथ द साइड, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 9/25। सो 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तुम्हें पता है ना मुझे कॉस थीटा बाई 2 क्यों चाहिए? कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू अगर मैं ये फॉर्मूला में डालूंगा तो मुझे साइन थीटा मिल जाएगा, और वही मुझे चाहिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देयरफॉर कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4/5। कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई। अब देखो, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 3/5। कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 4/5। सो देयरफॉर साइन थीटा कितना हो जाएगा? 24/25। 2 3 6 4 24/25। सो साइन थीटा आ गया मेरे पास। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि 2 साइन इनवर्स ऑफ, एक मिनट मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 थीटा था, तो साइन थीटा मिल गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ 24/25 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स ऑफ 24/25 इज इक्वल टू थीटा। अभी थीटा की वैल्यू है, इक्वेट कर सकते हैं इसको, नीचे जाके इक्वेट करता हूँ। देयरफॉर 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 जो थीटा था मेरा, अब नया थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है? आई एम सॉरी, नए थीटा की वैल्यू हो गई है साइन इनवर्स ऑफ 24/25। मतलब मैंने 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स को साइन इनवर्स ऑफ वाई में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो तुम अपने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से ये कर सकते हो, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये जो x है वो साइन थीटा दिखाता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा दिखाता है। सो इट इज नथिंग बट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये उसी फॉर्मेट को दिखा रहा है, ठीक है।
बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये एंगल है, सपोज ये एंगल, ठीक है, ये तुम्हारा थीटा है और ये आगे 2 लगा है, मतलब 2 थीटा। साइन इनवर्स अगर ये साइड आ जाता है तो ये बन जाता है साइन 2 थीटा। तो साइन, सॉरी, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू एक्स जो साइन थीटा है इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कॉस थीटा है। सो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तुम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, राइट। बट अगर नहीं, सपोज ये फॉर्मूला यूज करना है या नहीं याद है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हमने 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ 24/25 कन्वर्ट करने के बाद, माइनस अब ये जो tan इनवर्स ऑफ 17/31 है उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, उसको तुम साइन इनवर्स के फॉर्म में लाओ, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये LHS है तुम्हारा, LHS। इसको आगे साइन एक्स माइनस साइन वाई से, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई से आगे सॉल्व करते जाओ तो ये सिंप्लीफाई होके तुम्हें आंसर देगा, ठीक है। और आंसर π/4 ही आएगा, मतलब तुम्हें आएगा कुछ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 विच इज π/4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, अभी इसमें अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, कोई फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस बी। क्या होता है tan ऑफ a प्लस बी? tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b। एक बार कंफर्म कर लेना, यही होता है tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b। वैसे ही यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, क्या है ये? tan ऑफ, अब तुम सोचोगे a क्या है इधर, a π/4 है, b क्या है, ये b पूरा चीज है, a π/4 है और ये b पूरा है, राइट। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, मैं सिर्फ पहले तुम्हें पैटर्न बता रहा हूँ। सो tan ऑफ a माइनस बी क्या है, tan ऑफ a माइनस बी है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन tan a प्लस tan b, राइट। तो बेसिकली हमें ये फॉर्मूला लगा, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा जो a है वो है π/4, b क्या है, हाफ इंटू कॉस इनवर्स ऑफ a/b। क्या इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, थोड़ा कर सकते हैं। सो लेट कॉस इनवर्स ऑफ a/b इज इक्वल टू थीटा, राइट। कॉस इनवर्स ऑफ a/b को हम मान लेते हैं थीटा है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा a/b, कॉस थीटा हो जाएगा a/b, ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले कॉस इनवर्स ऑफ a/b को, b की तो वैल्यू मिल गई। तो मतलब कॉस इनवर्स a/b को अगर मैं थीटा लूँ तो हाफ इंटू थीटा हो जाएगा θ/2, हाफ इंटू थीटा हो जाएगा θ/2, ग्रेट। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस b। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan ऑफ a प्लस बी की जगह पे tan a प्लस tan b। सो tan a क्या है π/4 प्लस tan b, ओके। सो tan a प्लस tan b क्या है, tan ऑफ θ/2, ठीक है। b क्या है θ/2 अपॉन tan a माइनस tan b, दैट इज tan π/4 माइनस tan θ/2 प्लस tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन tan a
प्लस tan b। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो tan पाई बाई 4 होता है सबको पता है कितनी क्या वैल्यू है उसकी 1। सो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। राइट, ये सारी वैल्यूज है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे लोग। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस tan थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर। राइट, ये क्या हो जाएगा अब देखो, इसको अगर मैं पूरा ओपन करूंगा, टेक इट टू द राइट साइड, क्या है 1 प्लस tan थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर। अच्छा मेरे को बताओ व्हाट इज, बिकॉज थोड़ा सा एल्जेब्रा यूज करने वाले हैं, व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस 2ab प्लस 2ab कट, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, दैट इज 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे पता है? क्योंकि मुझे ऐसे ही कुछ मिला है यहाँ पे, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मेट मुझे यहाँ पे मिला और a माइनस बी द होल स्क्वायर यहाँ पे मिला और बीच में प्लस की साइन है। तो इसका आंसर मैंने अभी क्या निकाला 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, करें इसको सिंप्लीफाई, 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और मुझे बताओ नीचे क्या मिलेगा? नीचे मिलेगा मुझे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ओके, तो थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। सो 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस ब्रैकेट में देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख के तो देखते हैं, सब कुछ सेक के टर्म में क्यों ला रहे हैं अभी पता चलेगा। सो 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो 2 इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन cos square theta, sec is 1 upon cos, करेक्ट है। सो 2 माइनस 1 अपॉन cos square theta, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा
2 by cos square theta the whole upon 2 cos square theta minus 1 upon cos square theta. cos square theta कट. ओके, सो ये हो जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 upon 2 cos square theta minus 1. ठीक है, 2 upon 2 cos square theta minus 1 आया है हमको. अभी क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. cos थीटा का वैल्यू डालना पड़ेगा. cos थीटा का वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू a बाई बी. तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. ये हम लोग किसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं tan a माइनस बी को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, नहीं हमने ऐड किया था ना दोनों को, हाँ ऐड किया था. ऐड करके हमको यहाँ पे ये मिला था, फिर इससे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल सही जा रहे हैं. तो cos थीटा क्या था, cos थीटा a बाई बी. सो 2 अपॉन 2a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अपॉन 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल अपॉन बी स्क्वायर. कितना हो जाएगा ये, 2b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है मेरी. ओके, रादर देन यूजिंग दिस आइडेंटिटी, एक हाफ एंगल फॉर्मूला है tan का, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. सो हाफ एंगल फॉर्मूला कुछ ऐसा है, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. सीधा कॉस के टर्म्स में. अब मेरे पास है tan स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मुझे मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. अच्छी बात है, कॉस थीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, तो ये डाल देते हैं हम लोग फॉर्मूला. सो 2 ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट, अपॉन द होल अपॉन क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा द होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. राइट, एलसीएम ले लिया मैंने, और इधर भी एलसीएम ले लेंगे. 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में अंदर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अगेन द होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है, तो ये दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे कट जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे +1 -1 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट जाएगा. तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 + 1 2, 1 + 1 2 इंटू 2 4 अपॉन नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा. सो 2 ये 4 के साथ कट जाएगा, क्या बचेगा मुझे, 2 अपॉन कॉस थीटा. अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने क्वेश्चन में देखी थी, कॉस थीटा की वैल्यू है a बाई बी, राइट. तो अगर मैं कॉस थीटा की जगह a बाई बी डालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 अपॉन a बाई बी, दैट इज 2b बाई a.
यही मुझे प्रूव करना है, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने ये देखो यही मुझे प्रूव करना है 2b/a। मैंने क्या किया कि tan ऑफ a प्लस बी और tan ऑफ a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई मैंने, और ये जो cos इनवर्स ऑफ a बाई बी है उसको मैंने थीटा ले लिया, तो थीटा बाई 2 के टर्म्स में मुझे b की वैल्यू मिली। तो आइडेंटिटी लगाने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिला ये इस फॉर्म में, 2 ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। और tan थीटा बाई 2 का एक फॉर्मूला मैंने यूज़ किया जो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे। tan थीटा बाई 2 इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर कर दिया क्योंकि मुझे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 चाहिए था, राइट। फिर मैंने वैल्यूज़ डाल के सिंप्लीफाई करके जो मुझे आंसर मिला वो मिला कॉस थीटा के टर्म्स में, और उससे मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, सो दैट वाज द 12th क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द 13th क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन देखो। तो इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं LHS से। यहाँ पे लिखते हैं LHS। LHS क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, राइट। तो इसमें से हम लोग पहले तो दोनों टर्म में से 9/4 को बाहर निकालते हैं। जैसे ही 9/4 को बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3, राइट। 9/4 साइन, अच्छा π/2 क्या है, क्या मैं π/2 को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 1? यस, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अब सिर्फ तुम्हें क्या करना है पता है, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y। उसको सिंप्लीफाई करना है और तुम्हें RHS मिल जाएगा, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो आगे तुम ये करोगे, कंप्लीट करोगे। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं। Okay, in this question, so it is in the format of tan inverse of x minus tan inverse of y, right? You remember the identity, tan inverse of x minus tan inverse of y is, you can see it here, x minus y upon 1 plus xy, right? X minus y upon 1 plus xy. So this is your x, this whole thing is your x, and this whole thing is your y. Both are in terms of x only, but you, when you put the value, when you simplify it, you get tan inverse of 2x, right? I think something missing in the formula. Oh yes, there should be tan inverse of written over here. Okay, so let me just correct it in here. Let me rewrite it. Tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, x minus y upon 1 plus xy. So this is your x, this is your y. Put the value of x and y and solve it, and you will get this answer, correct? So 14th also has to be done by you. Let's go on the 15th one. This seems pretty easy, very easy. First solve these two, then solve these two. Tan inverse of x plus tan inverse of y, same formula goes over here, right? Whatever answer you get, again solve them using tan inverse of x plus tan inverse of y. Keep on solving, simplifying until you get the final answer as tan inverse of 1, which is π/4, which is equal to your RHS, right? So 15th is also very straightforward question, right? So asked in CBSE 2016.
Okay, question number 16. Hmm. So let me, it's too late now. I think I should upload this video. We are already 51 minutes past in this video, and there is one more video which I cut in between. So if I join them, I've done more than half of the question from this chapter. The remaining half also I'm going to solve for you, but till then you should start solving the worksheet which I am sending, uh, and also solve the solved examples which I have left for you in the video, right? So I think we are going very good in the topic and solving all the variety of questions, specifically those asked in past 10 years kind of questions, right? So I'll see you in the next video. Bye bye.